এইটা যে প্রতি মুহূর্তে প্রতি অবস্থায় প্রতি ভাবনার চিন্তন করুথ যাহার পরিणाम হচ্ছে হউথাও যে করোনারে মরুଛି মরুଥାଉ ଯିଏ ପୃଥିବୀରୁ ଚାଲିଗଲେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଯିଏ ରୁଷର ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯାହା ହେଉଛି ହଉଥାଉ ମୋର ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ମୋତେ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠି କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି କହୁଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କେଉଁଠି ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କହୁଛି ମୋର ସ୍ୱରୂପକୁ କେହି ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ କି ତାର ଦେହ ଭଳି ପରିଣାମ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯାହାର ଦେହ ଭଳି ପରିଣାମ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ କାହିଁକି ହେବି ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ମୋର ଗୁରୁ ଯାହାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଏ ଭାବନା ଆମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ତରଙ୍ଗ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ସେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ହେଇଥିବେ ଟିକେ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଏ ଗୁରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତିର ମାଧ୍ୟମ ଯାହା କରୁଛୁ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ଯାହା ଚିନ୍ତନ କରୁଛୁ ସେ କେଉଁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବାହ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ମୁଁ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାକ୍ଷୀ ଅମୃତ ଆତ୍ମା ଏକଥା ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦିଆହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ ଘୋଷିଦେଲେ ସେଇଠି ରହିଗଲୁ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ହେଉଛି ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାକ୍ଷୀ ଅମୃତ ଆତ୍ମା କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିଲି କ'ଣ ଜାଣିଲି କେବେଦିନ ତା ପାଇଁ ତର୍ଜମା କରିନେବି ଭାବିନି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୋଧ ଆସିଯିବ ଅନୁଭବକୁ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ମୋ ଠାରୁ କୌଣସି ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ଯଦି ସେ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୋକଟିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖିକି ନର୍ଦ୍ଦମାର ପୋକ କହି ଦେଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ବାଧା ଆସିଯାଉଛି ଭୁଲ ହେଉଛି ନର୍ଦ୍ଦମାର କୀଟଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରୁଛି ଧରିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ପାଇଖାନାକୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ କଥା ହେଉଛି ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ସିଏ ସେଇ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ତା କ୍ଷମତା ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ମୋ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କିଏ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୃକ୍ଷକୁ ଲତାକୁ କୀଟକୁ ପତକୁ ଦେଖିବା ଦୃଷ୍ଟି ବଦଳୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ଘର ଆମ ପରିବାର ଆମ ପିଲାଛୁଆ ଆମ କୁଟୁମ୍ବ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ପରିବାର ୟାକୁ ଭାବି ଦେଇକି ଜୀବନ କଟେଇବାରେ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ସମାନ ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଅହର୍ନିଶି ଚିନ୍ତା କରିବା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆମେ ଭାବୁନୁ ଏ ସମଗ୍ର ଚୈତନ୍ୟମୟ ସଂସାରରେ ଚେତନା ହିଁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି ସେଇ ଚୈତନ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ମୁଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତା ମୁଁକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ମୁଁକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଯିଏ ତାର ମୁଁକୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ମୁଁ କିଏ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳୁଛି ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଦେଇକି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ସେମିତି ନୁହେଁ ମୋର ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୁଁକୁ ମୁଁ କେତେ ଦୂର ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାକାର କରିଦେଇପାରୁଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହବ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ବୋଲି କହୁଛୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମପଦ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋର ମୁଁର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ମୁଁକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ସେ ମୁଁ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜଳ ଚେତନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଠି ତାହା ହିଁ ପ୍ରକାଶମାନ ହେଉଛି ସେ ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଆମ ଜୀବନକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଗୁରୁଙ୍କର ଏମିତି କୃପା ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳି ସଦ୍ଗୁରୁ ନ ପାଇଥାନ୍ତେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଭଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା ନିରୋଗ ରୁହ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସତ୍ୟ କଥା କୁହ ସତ୍ୟ ବଚନ କୁହ ସତ୍ୟ ବାଟରେ ଚାଲ ଧର୍ମ କର ଧର୍ମଂ ଚର ସତ୍ୟଂ ବଦ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ହିଁ ଆମେ ଧରି ନେଇଥାନ୍ତେ
କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଟାକୁ କେମିତି ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଗୁରୁ, କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିଦେଲେ ଯେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ କେବଳ ଚକ୍ 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 ହେଇ ଦେଖାଯାଉଛି କିଏ ନା ମୋ ଭିତରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବା ମୁଁ, ଏବଂ ମଶାଟି ଡାଁସଟି ତା ଭିତରେ ତାର ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେମିତି କାମ କରୁଛି ତାକୁ ଛୁଇଁଲେ ଜାଣି ପାରିବ। ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଉଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ସିନା କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସେ ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସେମିତି ଫୁଲଟିକୁ ଦେଖ, ଫୁଲକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ତାର ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଏ ବୁଝି ହଉନି କି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ଦୃଶ୍ୟ ସଂସାରର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଇଆ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟାଣିକି ନବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି କୋଉଠି ରହିବୁ, ଦ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ସାକ୍ଷୀ ରହିବୁ। ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀଟା ଇତସ୍ତତ ହେଉଛି, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଉଛି, ଇଆଡେ ସିଆଡେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପରିସରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋତେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାକ୍ଷୀ ଭାବରେ କେତିକି ପରିମାଣରେ ନିଜକୁ ମୁଁ ବଳିଷ୍ଠ କରି ରଖିବି, ସେଠି ହେଉଛି ମୋର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି, ଆଜି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଡକା ହେଇଛି ଏଠିକି, ତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ମୋ ସ୍ଥିତିରେ କେତେ ସମୟ ରହିପାରୁଛି, ମୁଁ କେତେ ସମୟ ମୋ ଭାବରେ ମୁଁ ରହିପାରୁଛି। ଯାହା ଯାହା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ଅଛି ଗୁରୁର କାମ, ଗୁରୁ ତାକୁ କରିବା ହିଁ କରିବ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଯାହା ସାର କଥା, ମୋତେ କୋଉଠି ନେଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇବାର କଥା, ଯାହାକୁ ଜଣା ଅଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଉଠି ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବା ତା ପାଇଁ ବାଟ ଯିଏ ବତଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଶରଣ ଦେଇଛୁ, ତାକୁ ତାଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଭାବକୁ ଆମ ଭିତରେ ପିଇଯିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଭାବ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ପିଇଯା, ପିଇଯା। ଖାଲି ଦେଖି ଦେଇକି ଚେହେରା ରହିଯାଆନି ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ଏ ତ ସମସ୍ତେ କହିଦେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଦେବ ଚୈତନ୍ୟର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଅବତାର, ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର, ସେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ରାସ୍ତା, ମୋ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ, ମୋତେ ବାଟ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁବିଧା ହେଉଛି। କହିବାର ବନ୍ଦ କରିବି ନା? ମୁଁ ଜାଣିନି, ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି। ସୁଇଚ୍ ସେଠୁ ଟିପା ହବ ନା ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ତ କହିଲେ କହି ଚାଲିଥିବି ନା। ତେଣୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଆଜି ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ଦୂର କେତେ କିଲୋମିଟର ଆସିଲି, ଏ ଭାବନା ମନର। ଆମେ ଯୋଉଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ବିଚାର କରିବା ସେ ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ ଯେମିତି ହଉ କିଛି ନା କିଛି ତିଆରି କରିକି ଏ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ଯିଏ ଆମ ପାଖରେ ସେ ସୁଯୋଗ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ସିଏ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ସାକ୍ଷାତ ପରମ। ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଅବସର ଆମକୁ ଆସିଛି। ଦୟାକରିକି ଚମଡ଼ାକୁ ଦେଖିବ, ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଉ ଚମଡ଼ା ଅଛି, କେତେ ବୟସ ହେଲାଣି ପଚାରିବା ଦରକାର କିଛି। ଆତ୍ମାର, ଚୈତନ୍ୟର ବୟସ ନଥାଏ, ସେ ଅବିନାଶୀ, ନିତ୍ୟ, ଚିରନ୍ତନ ନାହିଁ। ଆମେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ବୋଧ, ଏ ଅନୁଭବ ଆସିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଜି ଦିନଟାକୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ପାଳନ କରିବା ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଅହୋଭାଗ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ମୋ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କୋଉଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବବିନ୍ଦୁରୁ ପହଁରି ପହଁରି ପଳେଇ ଆସିଛୁ। କିଏ କୋଉଠି ସୁଯୋଗ ବି ପାଇଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ, କୋଉ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ପରମ ବ୍ରହ୍ମର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ସେ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଆନନ୍ଦର କଥା। ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ବି ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ନମସ୍କାର କରିବା କଥା। ସୌଭାଗ୍ୟ କମ୍ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ନାକୁ ଆମେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପ୍ରତିକୂଳ ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁକୁ, ଚୈତନ୍ୟମୟ ଗୁରୁକୁ ଆଣିକି ନିଜ ଘରେ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେ। ରହିଥାନ୍ତେ ସେ ତା ପୂର୍ବ ରାତିରେ ଯୋଉଠି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଉଛି। ଅମୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ସେ ରହିଥାନ୍ତେ, ସେ ଡାକିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନେଇଥିଲେ, ପରିବେଶ ଏମିତି ହେଲା, ସେ ନିଜେ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଯେ ଆପଣ ଆସିଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଯାହାଫଳରେ
ये आतुर होता केमती आम घर को आसते प्रस्तुत हवा एत सहज नाला किंतु करोना तो देख कि कोविड आसी पहुँचीगला तो अनुध्यान करने पड़ो खाली गुरु संस्पर्श में आसिले भी कहीदेल हम अनुध्यान कर प्रत्येक मुहूर्त आम जीवन को अनुध्यान करने पड़ो तेणु सौभाग्यर कथा आज आम सुजोग पाई से अनुसार जिते दिन ज्ञान गंगा प्रवाहित हबार अच्छे जो सोर्स जो माध्यम जहाँ को आम गुरु बोली कहूँ से गंगार मूल स्रोत हो चैतन्य ज्ञान मूल स्रोत हो प्रवाहित हो दैविक समस्त भीतर देखे से गतिशील या जितना आम न बुझीपर ये चैतन्य किभली भाव में समस्त भीतर प्रवाहित होते आम प्रकृत आनंद पाई तेणु आनंद बांटार मुहूर्त आज आनंद को उपलब्धि कर मुहूर्त आज आनंद को जीवन में परिपालित कर मुहूर्त आज यही भाव रख मुझे निरानंद ये आनंद पाइबापी आसना नहीं कारण मो जीवन का सारा जो जहाँ मिली से आनंद बोली कहीपरिना से विभिन्न प्रकार जंत्रणा भरपूर अच्छे कहार जंत्रणा ना कि एमती एक सत्ता अच्छी जहाँ पाखे पहुँची गला सब अवसान प्राप्त हो जाए मनुष्य कौन को अवस्था भूली जाए एक स्थिति को पड़े सी हूँ आनंदमय स्थिति गुरु चाहती आम समस्ते जी आम पाखक गला से दिव्यतार भरद मुहर हस फुटेदवा आनंद टी छुटी पलि आसो से कथा चिंता कर आम मु किए मु कौन को अवस्था अच्छी चाकरी करफिसर अच्छी ये सब बाहर कथा यार किसी भूल ना किंतु आम भर अफुरंत आनंद प्रत्येक मनुष्य को बलाग्रत करना आपणार करना से गुरुत्वपूर्ण कथा तेणु स्वामीजी किसी 2 मिनट हो कि मिनट हो मत कहवाई अवकाश देले मत लगे जदि आम प्रसाद बांटन खाଇବା गुरुर प्रसाद आमको जहाँ अच्छी आम टे बांटिकी परस्पर भर उपलब्धि कर प्रसाद किए तेणु किए प्रसाद ज्ञान ज्ञान हूँ प्रकृत प्रसाद से प्रसाद आम समस्त पाइबापी आम भाव सहित भाषार समन्वय हवा दरकार आम हृदय सहित प्रेमर संपर्क हवा दरकार जहाँ आम देखु जमी देखु कौन पे आम भर एत आत्मीयता आम जाए से जड़े जार करुणा संपूर्ण करुणा जमी बुद्धंकर करुणा थी जो शिष्य मान सेमती आम प्रति अखंड करुणा किंतु बाटे से करुणा को उपलब्धि करने पड़ो निज को अनुभव करने पड़ो आनंदमय राज्य को केमी आम जापर आम चिंता करवा ये कौन वर्ण कौन जाति रंग वर्ण वैषम्य जमी न रहे कहीं चैतन्य आत्मार कौन बयस नहीं छेलीर आत्मा कुकुर आत्मा मनीषर आत्मा गचर आत्मा पहाड़ आत्मा किसी अलग अलग यही अखंड सत्ता चैतन्य सबुठी परिपूर्ण हो रही है आम बही पढ़ीदेला हम ये भावटा आम हृदय भितर परिपालित करवा दरकार दशमती बुझी होना नहीं कौन कर मोर घर उठला बेलू मुझे लाउ गछ की देखुची पत्रटा नेलिया मिल जाए लाउ गछ बोलता कहने चैतन्यटा केमती माड़ी माड़ी जाए बोधटा प्रत्येक क्रिया ये भावना ये बोध जमी आसीगला जो आनंदटा कौन आम निजे निजे बुझी जाए प्रत्येक क्रिया ये चैतन्य को जगह आनी ठिया कर दो आनंद आम दूरे तेणु कौन करवा मत टीका कहला आप बंद करेंगे से आप कहले मुझे स्वामीजी को डाक मुझे स्वामीजी के बंद करने कहे से कहले मुझे बंद करी ये अवस्था आम रही तथापि टी आदेश मिले मोर विराम देवी मोर वाक्य किंतु ये जानवर कथा दिव्यता को दर्शन कर हुए
आम भीतर दिव्यता अच्छी ना दर्शन करेंगे किंतु अनुभव करेंगे आम भीतर दिव्यता अच्छी ना दर्शन कर देखिए हम किंतु अनुभव करेंगे बस बस से झाटा पलि आस अनुशोचन कर अवकाश रहा जदि सत्य को सहज अंगीकार करेंगे आम जीवन में आम जेकोसी क्रिया करूँ किसी ना किसी भूल रहा किसी ना किसी त्रुटि रहा भाव किंतु जी सत्य को अंगीकार कर पाखे भूल मनुष्य मत प्रवेश कर भूल ये स्थान ना कारण सत्य हूँ एकमात्र जिनस जी सर्वत्र परिव्याप्त हो रही से सत अशब्द अस्तित्व सत शब्द अस्तित्व माने मुझे किए मना करे मना बोली ये गोटे शब्द सारा पृथ्वी सारा विश्व ब्रह्मांड मानिया बाध्य जी धरी कर भाग्यर कथा जी न धरी कर समय लगे परिश्रम दरकार साधना दरकार कौन साधना मुझे द्रष्टा साक्षी अमृत आत्मा ये शब्द उपर निजर निष्ठा निजर भरोसा जिते गभीर गभीरतर हम से प्यूरिफिकेशन आम भर पवित्रता प्रकाशमान हो ये पवित्रता नहीं जदि से घर को जाए दुखदायक घर प्रत्येक द्रव्य को छुआ भी दुखदायक कथबार्ता करवा भी दुखदायक जहाँ भीतर ये सत्य रही है सी वैकुंठ भवन में पड़े तेणु आम जीवन में आम परिवेश जदि आम ताहा न करें आम कि जीवन यापन करूँ बुझा पड़ो मोर अनुरोध गुरुंर महानता को जिते दिन मस्तिष्क आम धारण कर रखि मन रख ये विद्या अद्वैत सिद्धि समस्त पृथ्वी एभली भाव परिव्याप्त हम जोटि मनुष्य प्रकृत आनंदर रहस्य बुझीपे बहु भाग्य ये गुरु मिलती ये कि सबू गुड़ाक तन्न तन्न करके आम आगे परीक्षा करके गोटे गोटे एमती थोड़ी दिखते जहाँफल मो भर जो प्रकार ग्लानी थाए सन्देह थाए से सब गोटे 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 केते दूरीभूत हो सफा सफा ये सब सहज कथा नहीं बहुत गुरु आम देखी जीवन में बहुत पढ़ी बहुत शुणी कितु एभली भाव में मनुष्य मनर एकदम तार भीतर प्रारंभिक स्तर परिवर्तन आनी 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 नहीं जावा ये क्वचित देखा जाए तेणु विश्व को परिवर्तन करने जो गुरु आम पाखे उभा होती छोटिया घर भितर आम रखी भावी नब ना जे विश्व को आलोक देखापी जहाँ आगमन बापू जहाँ आगमन आम से दृष्टि देखा अंततः आज से दृष्टि देखा विश्व को महालोक देवाई समग्र प्राणी समाज को नूतन ढंग से सजाई देवाई सारा पृथ्वी को बर्णील करदेवाई इंद्रधन रंग में सजाई देवाई कहीं ना कहीं महापुरुष अवतरित होता तेणु से सुयोग को आम जीवन में पालन कर अवसर मिला
समझना महामूढ़ता है। उनका समझना महामूढ़ता है। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। जीव ब्रह्म में जो भेद लखत है, जीव ब्रह्म में जो भेद लखत है, भय उनका नहीं कबहू भगत है। भय उनका नहीं कबहू भगत है। द्वैत में भय को वेद कहत है, द्वैत में भय को वेद कहत है। भेद बताना महामूढ़ता है। भेद बताना महामूढ़ता है। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। वो निश्चय भुलाना महामूढ़ता है। स्वयं ब्रह्म होकर जीव बन रहे थे, स्वयं ब्रह्म होकर जीव बन रहे थे। अज्ञान से चल चल थकते रहे थे, अज्ञान से चल चल थकते रहे थे। आत्मज्ञान से हम तो स्वस्थ हुए हैं, आत्मज्ञान से हम तो स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ न होना महामूढ़ता है। स्वस्थ न होना महामूढ़ता है।
अवसर मिला है। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। फिर ना समझना महामूढ़ता है। फिर ना समझना महामूढ़ता है। सहारा न देते अगर मेरे भगवन सहारा न देते, बता दो तुम्ही मेरा क्या हाल होता। बता दो तुम्हें मेरा क्या हाल होता। खाई है ठोकर ज़माने से हमने। खाई है ठोकर ज़माने से हमने। घायल हुआ था यह मन मेरा। घायल हुआ था यह मन मेरा। सभी दिव्य पुण्य एवं सिद्ध आत्माओं के चरणों में नमन। भजन के माध्यम से गुरु तत्व पर प्रकाश किया जा रहा था। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण जी को भी जगद्गुरु के रूप में कहा। गुरुरेव जगत सर्वम भी कहा। इसी तरह दत्तात्रेय जी ने इस जगत सर्वम में से गुरुरेव जगत सर्वम इस सिद्धांत में से 24 तत्वों को ग्रहण किया। 24 शिक्षाओं को ग्रहण किया 24 माध्यम के द्वारा। दत्तात्रेय जी ने किसी से कान नहीं फुकवाया, केवल उनमें जो विशेषता थी जिसको उन्होंने स्वीकार किया गुरु रूप में। एक बार की घटना है, जयपुर नरेश राजकारी से उपराम होकर सुख की तलाश में, आनंद की तलाश में, अमरता की तलाश में निकले। और जंगल में उस सुख को तलाशने लगे। राजकार्य से मन उपराम हो गया। राजरानी राजपुत्रों से, राजकोषों से मन उपराम हो गया। देखा कि कहीं शांति नहीं, किसी में शांति नहीं, कभी भी शांति नहीं।
आखिरकार ये शांति कहाँ मिलेगी? इस राजकारी में, राजवैभव में, राजरानी में, राजपुत्रों में तो सुख की बूंद भी नहीं। ये सुख की तलाश में जंगल में निकल पड़े और उन्होंने वृंदावन के जंगल में अपनी तंबू को निर्माण करवाया। एक दिन क्या हुआ कि वो अपने तंबू में आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे और सामने से एक कोई मस्ताना जिसके कपड़े का कोई ठिकाना नहीं चला आ रहा था। उसकी चाल देखकर, उसकी मस्ती देखकर, उसके जीवन की खुशी देखकर ये जयपुर नरेश अपने मन में लज्जित हो पड़ा कि धिक्कार मेरे राजवैभव को। ये व्यक्ति जो सामने से चला आ रहा है, जिसके तन के ऊपर कपड़े तक नहीं है, कुछ सुबह शाम खाने का सामान भी लेकर नहीं चल रहा है, कोई अस्त्र शस्त्र भी इसके पास नहीं है सुरक्षा के लिए। क्या इसने पाया है? ये मस्ती, ये खुशी तो मेरे जीवन में तो दिखती नहीं, जबकि मैं राजा हूं। तो इस व्यक्ति को जो खुशी है ये राज वैभव की नहीं है। राज वैभव की अगर इसकी खुशी होती तो मैं खुद राजा हूं, मेरे को भी मिल जाना था, पर मुझे तो नहीं मिल रहा है। चलो इससे पूछते हैं चलकर कि भाई तूने क्या पाया है, किसके लिए तू इतना इठलाता हुआ मस्ताना चल रहा है। उठे, अपने तंबू से निकलकर उस आने वाले सामने से उस मस्ताना संत के पास पहुंचे, जाकर उसे नमस्कार किया कि भाई मैं आपकी खुशी और आनंद को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा हूं। तुमने ऐसा कौन सा गुरु पाया है जिसके कारण तुम इतने खुशहाल दिखाई पड़ते हो? उस मस्ताने संत ने कहा, मैंने किसी कंफू के गुरु से कान नहीं फुकवाया है। मैंने तो इस प्रकृति को ही गुरु बनाया है। प्रकृति में नजर डाला है तो जिन जिन से जो जो मुझे शिक्षा प्राप्त हुई है, मैंने उसको ही गुरु बनाया। कोई शरीरधारी, वेशधारी, जटामुंडधारी, गहरी वस्त्रधारी, बाल बढ़ाने वाला, दाढ़ी मूछे रखने वाला, कपड़े रखने वाला, ऐसा मैंने कोई गुरु धारण नहीं। तो जयपुर नरेश ने कहा, आप मुझे
बताइए जिनके आचरण को देखकर, जीवन को देखकर आप प्रभावित हुए और आपने उनकी ऊपर की शिक्षाओं को ग्रहण करके ये आनंद पाया। तो दत्तात्रेय जी ने अपना नाम का परिचय दिया कि मेरा नाम दत्तात्रेय है और मैं पहले उन 24 गुरुओं के नाम बताता हूँ जिनसे मैंने ये शिक्षा प्राप्त की है। फिर उनमें क्या क्या गुण थे, उन गुणों का वर्णन मैं इसके बाद आपके सामने करूंगा। आपकी श्रद्धा होगी तो आप भी उन गुणों को जीवन में धारण करके और मेरी तरह आनंद का अनुभव कर सकोगे। तो पहले तो आप उन 24 गुरुओं के नाम को सुने। उनमें पहले पृथ्वी को गुरु बनाया, उससे शिक्षा ली। फिर जल को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, सूर्य चंद्र को गुरु बनाया, कबूतर, कपोत, अजगर, सांप को गुरु बनाया, सिंधु को गुरु बनाया, पतंग, भ्रमर, मधुमक्खी को गुरु बनाया, हाथी, मृग, मछली को गुरु बनाया, पिंगला, कुरु पक्षी, बालक, कुमारी को गुरु बनाया, सर्प, मकड़ी और भिंडी को गुरु बनाया। ये मेरे गुरु हैं। इनके द्वारा मैंने अपने जीवन में शिक्षाएं ग्रहण की है। तो अब इनके क्या क्या मेरे मन पर प्रभाव पड़े हैं उन्हें मैं बताता हूँ। मेरा प्रथम गुरु पृथ्वी है। मैंने उससे यह गुण ग्रहण किया है। ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने। ये मुंह की पट्टी हटाकर फेंके, यहाँ सत्संग में बैठे हो पागलों की तरह। हम इस पृथ्वी को कितना ही रोले, खोदे, हल चलावे, ब्लास्टिंग करें, कुआ तालाब बनावे, कितना इस पर गंदगी को हम त्याग करें, वह हमें कुछ नहीं कहती है, सब सहन करती है। मल भी त्याग करते हैं, पत्थर फोड़ते हैं, खदाने खोदते हैं, कितना कितना अंडरग्राउंड ट्रेनें चला रहे हैं, अंदर अंदर धातुओं की खोज हो रही है, गुफाएं बनाकर, ये सब होता है। लेकिन कुछ बदला नहीं हमसे हमें देती है, बल्कि फल देती है, पौधे देती, वृक्ष देती, पुष्प देती, पत्र देती, इतनी सब चीजें देती है। वह हमारे सब अत्याचार सह लेती है। वह बदला न लेकर क्षमा ही करती है एवं बदले में आपको अन्न, वृक्ष, फल, जल ही देती है। जीवों का पालन पोषण ही करती है। जो पुरुष इस गुणों को ग्रहण कर लेता है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को कहा रहीम हरि को भेटो जो भृगु मारी लाख। भृगु ने लाख मारी भगवान को, तभी भगवान ने उसको कुछ बदला नहीं दिया, गुस्सा नहीं किया।
तो ये क्षमा भाव हमें सीखना चाहिए इस पृथ्वी के द्वारा कि हम पत्थर भी मारते हैं वृक्षों को तो फल ही देते हैं, पत्र ही देते हैं, मैं दंड नहीं देते। जीवों का पालन पोषण ही करती है। जो पुरुष इन गुणों को ग्रहण कर लेता है वह जीवन मुक्त होकर विचरण करता है। मैंने पृथ्वी से इस क्षमा गुण को ग्रहण किया है। दत्तात्रेय जी 24 गुरुओं में से प्रथम गुरु पृथ्वी को स्वीकार करते हैं और पृथ्वी को गुरु किस लिए स्वीकार किया कि उनके द्वारा क्षमा की शिक्षा मिलती है, कि उनके साथ कितना हम लोग अत्याचार करते हैं, हल चलाते हैं, जमीन फाड़ते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, कितने कितने प्रकार के मकान फैक्ट्री उस पर बनाते हैं, वो कुछ बदला नहीं देते, तो इसलिए वो गुरु मेरा। तो पृथ्वी के द्वारा हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्षमा। क्षमा। कोई भी समर्थ होते हुए भी तुम में से और कोई असमर्थ आदमी कुछ भूल कर दे, तुम समर्थ हो और वो असमर्थ है, तब भी तुम उसको दंड नहीं दोगे। क्षमा, ये बड़प्पन तुम्हारा होगा। तो बड़े लोग जितने भी हैं हर क्षेत्र में बड़े, कोई धन में, कोई बल में, कोई पद में, कोई विद्या में, कोई ज्ञान में, तो अपने से कम शक्ति वाले को, बल वाले को, धन वाले को क्षमा ही करे। भूल उसकी हो गई तब भी उसे क्षमा ही करे। तो ये मेरा पहला गुरु है। ये आप लोगों को सहना है, लेकिन तुम्हें तो क्रोध उबल रहा है। थोड़ा सा मिर्च ज्यादा हो गई सब्जी में कि नमक कम ज्यादा हो गया तो उबलने लग जाते हो। स्त्री पर बनाने क्या खाना बनाया, उसके सामने फेंक देते हैं थाली को उठाकर। क्रोध इतना, क्षमा भाव, क्षमा बड़ को चाहिए। तुम बड़े हो किस लिए? क्षमा की वजह से। क्षमा को धारण करो। दत्तात्रेय जी अब दूसरे गुरु का वर्णन करते हैं कि दूसरा गुरु मेरा जल है, हमारा जीवन है। जल के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। तो जल से मैंने दो गुण ग्रहण किए हैं, एक तो निर्मलता, स्वच्छता और माधुर्यता। कटुता नहीं, तीक्ष्णता नहीं, तीव्रता नहीं। जल स्वभाव से ही स्वच्छ एवं मधुर है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने स्वभाव से स्वच्छ, भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, भीतर वही बाहर, जो बाहर वही भीतर। लेकिन सब लोग दुरंगी हैं, भीतर कुछ चल रहा है, बाहर कुछ कह रहे हैं, बाहर कुछ कह रहे हैं, भीतर कुछ अंदर और चल रहा है। तो यह कपटता नहीं होना। जल से मैंने यही सीखा कि वो जैसे स्वच्छ और निर्मल है, माधुर्य स्वभाव, मधुर है, सबको मधुरता देता है, सबके कंठ में जो प्यास है उसको तृप्त कर देता है। यह दो गुण मैंने जल से लिए हैं। कौन कौन से दो गुण लिए हैं? एक तो माधुर्यता और स्वच्छता। और पृथ्वी से मैंने क्या गुण लिया है? क्षमा भाव। अब दत्तात्रेय जी कहते हैं कि तीसरा मैंने अग्नि को गुरु बनाया। अग्नि को क्यों गुरु बनाया? वो जितना रखती है उतना निकाल देती है, संग्रह करके नहीं रखती। अग्नि जितनी अंदर है, काठ में कह दो, कोयले में कह दो, बस उतनी की उतनी निकाल देती, कुछ बचा कर छुपा कर नहीं रखती है। यही हमको भी सीखना चाहिए कि जितना आवश्यकता है उतना ग्रहण करके अतिरिक्त का दान कर देना चाहिए।
निर्धन को, निर्बल को, रोगी को, जो भी तुमसे भिन्न है उसकी तुम जिस तरह से मदद कर सको मदद करना चाहिए। लेकिन तुम तो मरते तक का भी संग्रह करके रखते हो, उसका उपयोग नहीं करते हो। लोभ वृत्ति कितनी अधिक है मनुष्य के अंदर। अगर ये कागजों के जो बंडल हैं जिनको तुमने धन या रुपया कहा है, कागजों के बंडल, उनको जलाओगे तो कौन सी धातु निकलेगी? राख बन जाएगी जलाओगे। लकड़ी को जलाओगे तो कोयला तो बन जाएगा और कुछ प्रकार की चीजों से, लेकिन इनसे क्या मिलेगा? केवल राख मिलेगी, कुछ काम में नहीं आएगी। अगर कोई का मोबाइल आने तो इसी वक्त में ऑफ कर देना, उसका नंबर भी मत देखना कि कौन से नंबर से कहां से रिंग आया, निकल जाए बाहर यहाँ से मोबाइल को लेकर। तो ये धन तभी धन है जब उपयोग में आ रहा हो, किसी भी प्रकार के उपयोग में आता हो। लेकिन तुम तो 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब बस इनकी गिनती में लगे हो। जब प्राण निकल जाएंगे तो तुम्हारे जलाने के काम में भले आ जाए, नहीं तो ये कागज के बंडल और कोई काम नहीं आएंगे। तुमको जलाकर राख कर सकते हैं, इतनी उनमें क्षमता है। और उससे फिर कुछ भी मरने के बाद क्या काम है? तो यहाँ पर अग्नि कहती है कि मैंने जो कुछ रखा है उसको निकाल देती हूँ। इतना कोयला है, जल जाएगा, आग खत्म। इतनी लकड़ी है, जल जाएगी, अग्नि फिर खत्म। संग्रह वृत्ति नहीं है। तो ये शिक्षा लेना है हमें कि जितना उपयोग में आता है बस उपयोग में लेकर अतिरिक्त का दान कर दें। अतिरिक्त को और रखना ये चोरी है, महाचोरी है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के 3 अध्याय के 13 श्लोक में चोर कहा है, सब शब्दों में, कि जो इन देवताओं के उपयोग में नहीं आता है, इन आस पड़ोसियों के प्राणियों के उपयोग में जिसका जीवन नहीं आता, जो अपने को ही बस सुखी बनाने में लगा हुआ है, अपना ही वृद्धि करने में, ये चोर कहलाता है। और फिर इसको अगले जन्म में ऐसा जीवन दिया जाता है, द्वार द्वार पर इसको खड़ा किया जाता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भिक्षुका नेव भिक्षन्ति बोधयन्ति ग्रहे ग्रहे। ये भिखारियों को भिखारी मत समझो, ये गुरु है, गुरु तुम्हें शिक्षा देने आए हैं कि हमारी दशा देखो, हम पहले तुम्हारी तरह राजा महाराजा सेठ साहूकार धनी मानी थे, लेकिन हमने अपनी मुट्ठियों को बंद करके रखा, किसी के आगे अपनी मुट्ठी खोला नहीं। जो तुम्हारे द्वार पर ऐसे हाथ फैलाकर खड़ा था, दीन दुखी गरीब भूखा हाथ फैलाकर मांग रहा था, तुमने अपनी बड़ी मुट्ठी को उसके ऊपर खोला नहीं, दिया नहीं, बंद करके भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भगा दिया। तो परमात्मा ने भिक्षुका नेव भिक्षन्ति बोधयन्ति ग्रहे ग्रहे। अरे ये भिखारियों को भिखारी मत जानो, ये गुरु हैं, घर घर जाकर शिक्षा दे रहे हैं कि हमारी दशा को देखो, हम पहले तुम्हारी तरह धनी मानी थे, लेकिन अपने धन का, पद का, बल का हमने सदुपयोग नहीं किया, तो आज परमात्मा ने हमको ऐसा करके खड़ा कर दिया। इसलिए तुलसीदास कहते हैं, तुलसी कर पर कर धरो,
तुम्हारे आगे कोई ऐसा दिखे निरंजन भिखारी जैसा, तो तुलसी आगे उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखो। तुलसी दास कह रहे हैं कि रहीम भी यही कह रहा है कि जो तुम्हारे आगे भिखारी बन के खड़ा है तो उसको ऐसा करो, कर पर कर धरो, उसके हाथ पर अपना हाथ हो, उसके आगे तुम हाथ मत करो। ऐसी प्रार्थना करो कि भगवान मुझे किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, बल्कि मुझे ऐसा कर कि मैं सबके हाथों के ऊपर अपना हाथ रखूं जो मेरे सामने आए। तो तुलसी कर पर कर धरो, कर कर न करो। और जिस दिन तुमको किसी के आगे ऐसा करना पड़े निरंजन, मरण करो, मर जाना डूब के पानी में। अगर तू किसी के आगे ऐसा हाथ फैलाता है कि मुझे रुपया चाहिए कि पैसा चाहिए, और ऐसा करके रख। तुलसी कर धरो, कर न करो, और जा दिन कर कियो, ता दिन मरण करो। विश्वास करा रहे हैं संत। क्या विश्वास करा रहे हैं? मुर्दे को हरि देता है, मुर्दा मर गया, डेड बॉडी, करोड़ों का रुपया जमीन में गाड़ के, दीवारों में छुपकर, बिस्तरों में लपेटकर, लेट्रिन बाथरूम के टैंक में डालकर और मर गया। तो मुर्दे को हरि देता है कपड़ा, लकड़ी, आग, 3 चीजें मुर्दे को चाहिए। क्या क्या? को ढककर ले जाने के लिए कपड़ा, जिसको कहते हैं कफन, लकड़ी जलाने के लिए शरीर को, और उस लकड़ी को अंदर अग्नि प्रज्वलित करा, 3 चीजें। तो मुर्दे को हरि देता है कपड़ा, लकड़ी, आग। ये जीवित नर चिंता करे या को बड़ो अभाव। जीवित नर ये चिंता कर रहा है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, इतना रुपया और इतना मकान और इतनी जमीन और इतना धन बढ़ाता है। तो कहा है कि जिसके मन में ऐसा है ता दिन मरण करो, तो मर जाने जैसा। तो संतोषी सदा सुखी, संतोष के बराबर कोई धन नहीं है। संतोष आ गया तो सब कुछ आ गया। गोधन, गज धन, बाज धन और रत्न धन खान, ये बड़े धन माने गए हैं। गौ पशुओं ही पहले सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती थी। जिसके पास जितनी ज्यादा पशु वो सबसे बड़ा माना जाता। कृष्ण भगवान सबसे बड़े धनी, इसीलिए उनके पास असंख्यों गौ। तो गोधन, गजधन, जिसके पास हाथी है वो भी बड़ा धनी। राजा महाराजा सेठ लोग गोधन, गजधन, बाजधन, और जिनके पास ये बाज पक्षी है वो भी बड़े माने जाते थे। गोधन, गजधन, बाजधन और रत्न धन खान, रत्नों की, हीरे जवाहरात की खान हो। लेकिन संतोष वहां भी नहीं है। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। जब जीवन में संतोष धन आ जाएगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो जो दिया है उसका मैं गुणगान नहीं कर सकता। एक चीज कितनी कीमती। जरा सी आंख में कोई पतला सा पेपर लगा दिया, 3 लाख रुपया। जरा से टांगे में कुछ चिंपाल बनाकर, कटोरी बनाकर लगा दी, 5 लाख रुपया। किसी किडनी लगा दी और उससे ज्यादा। कितनी कितनी चीजें कीमती तुमको इस शरीर में दी,
और फिर भी कहते हो मेरे को कुछ नहीं दिया, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे समान कौन गरीब होगा। ये भगवान की आप आदर नहीं अनादर कर रहे हैं। एक एक चीज इतनी कीमती है, भीख मांगते हैं दरवाजे पे और उससे कह दे कि तू तेरी दोनों आंख दे दे 10 लाख, बोले मैं पागल हूँ, 10 लाख में दोनों आंखें दे दूंगा। अरे 10 लाख तू कह रहा मेरे पास कुछ भी नहीं तो 10 लाख तेरी दोनों किडनी दे दे, चल तेरे को मैं 20 लाख देता हूँ। मैं कोई पागल हूँ, क्या करूंगा, मर जाऊंगा। 20 लाख को भी तैयार नहीं, 10 लाख में तैयार नहीं, और कटोरा लेकर खड़ा है कि कुछ दे दो। भगवान ने कितनी कितनी कीमती चीज दी, कैसा ये जीवन दिया, ये देव दुर्लभ। हॉस्पिटल में तो चले जाओ, देखो वहां दोनों नाकों में नली लगी है, मुख में भी पाइप लगा हुआ है, अरे कंठ में भी पाइप लगा हुआ है, छाती में भी पाइप लगा हुआ है, मूत्र द्वार में भी पाइप लगा है, मल द्वार में भी पाइप लगा है। तुम अपने को देखो, जो कहते हो मेरे पास कुछ नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, तुम उससे अपनी तुलना करो कि भगवान ने मेरे को कैसी कैसी चीजें, अमूल्य चीजें दे दी, और फिर भी मैं भगवान का गुणगान नहीं गाकर, ये नहीं दिया मेरे को, वो नहीं दिया, ये कब मिलेगा, वो कब मिलेगा, भीख मांगता है। ये मंदिरों में प्रार्थना कर रहा है, ये आश्रमों में भी प्रार्थना करता है, तीर्थों में भी प्रार्थना करता है, पूजा गृह में भी प्रार्थना करता है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, बस ये इसकी अवस्था। इतना सब कुछ दिया है, अमूल्य अमूल्य चीज दी है, और फिर भी कहता है कि मेरे जैसा कौन गरीब होगा। और तुम तुलना करो उस व्यक्ति से अपनी, जो हॉस्पिटल में बेड पे पड़ा है। तो जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जीवन में संतोष जब आ जाएगा तो ये धूल के समान हो जाएगा, कोई इनका मूल्य नहीं, लात मार कर निकल जाएगा। सीखो, कुछ सीखो, अपने पशुओं से सीखो। अरे अपने घर के कुत्ते, बिल्ली, गाय, घोड़े, गधे से सीखो। पेट भर गया कि चल देता है, फिर साथ लेकर नहीं जाता, संग्रह करके रखता नहीं। कभी देखा गाय को, घोड़े को, गधे को, ऊंट को, बैल को, हाथी को संग्रह करते हुए लेते हुए? पर तुम देखोगे महात्मा बनकर भी गठरी इतनी बड़ी है कि उठती नहीं है, इतना वजन है, कम्बल भी है, उसमें रजाई भी है, फिर दही भी है, तो फिर अपने बर्तन भी है, जो जो मिलता रहता है। संतोष नहीं। पर ये संतोष कब आता है? राज से नहीं, पुत्र से नहीं, पति से नहीं, धन से नहीं, आत्मज्ञान से। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया है उसके जीवन में संतोष घटता है, और जिसके जीवन में संतोष नहीं है, यहाँ बैठे हैं, असंतोषी जीवन है, इन्हें आत्मज्ञान हुआ ही नहीं, आत्मज्ञान हुआ ही नहीं। देखो एक पागल और निकला अंदर बैठे, कभी भी तुमको सुख शांति नहीं मिलेगी। तो अग्नि के द्वारा हमने क्या सीखा कि जितना वो अपने अंदर रखती है उसको पूरा निकाल देती है, उसमें संग्रह वृत्ति, ये अग्नि से हमने सीखा है। मनुष्य को भी अपने
उदर में जितनी क्षमता है उतना ही रखना चाहिए, उससे अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। इसलिए अग्नि को मैंने अपना गुरु बनाया है, और जो लोभ वृत्ति रखता है वह चोर कहलाता है। अपने उपयोगिता से अधिक जो भी तुम रखोगे, कपड़ा भी रखते हो निरंजन, किसी भाकर जो उठाई नहीं जा रही है 2 आदमी से, ये चोरी है। उतना कपड़ा तुमने संग्रह करके रखा है, तो कुछ गरीब नंगे लोगों को मिल जाता तो उनकी सर्दी में उनके कुछ काम आता। लेकिन ऐसे लोगों के संपर्क में रहता है कि वो लोग ही सिखाते हैं, संग्रह से ये भी रख लो, ये भी रख लो, ये भी काम आएगा, ये भी काम आएगा, ये अगली ठंड में काम आएगा, इस ठंड में नहीं आएगा उसमें। इस तरह से मन में लोभ वृत्ति रखते हैं। आगे दत्तात्रेय जी कहते हैं, मैंने चौथा गुरु वायु को बनाया है। ये वायु भी गुरु है। जिस तरह वायु निरंतर चलता रहता है, किसी भी पदार्थ, वृक्ष, अन्न में स्थान में आसक्त नहीं होता कि ये तो बढ़िया चंदन का जंगल है, मैं यहाँ रह जाऊं, या ये तो बढ़िया हरियाली है, यहाँ मैं रह जाऊं, और जगह तो सब सूखा सूखा रेगिस्तान पड़ा है, उधर नहीं जाऊं। ऐसा वह नहीं है। किसी भी पदार्थ व स्थान में आसक्त नहीं होता है। कौन? वायु। सब जगह समान भाव रखता है। उसी प्रकार साधु को भी किसी भी व्यक्ति, स्थान, पदार्थ में आसक्त नहीं होना चाहिए कि मैं तो गणेश के घर में रहूंगा, कि सुरेश के घर में रहूंगा, कि महल में रहूंगा, कुछ एसी में रहूंगा। कुछ ऐसा नहीं। कैसा होना चाहिए उसको? कभी घी घना राजमहल मिल गया, एसी रूम मिल गया, लिफ्ट मिल गई, चलने की जरूरत नहीं। और कभी मुट्ठी चना, कभी घी घना, खूब माल मिठाई, और कभी मुट्ठी चना, और कभी वो भी मना। तीनों अवस्थाओं में शांत रहता है, शांत रहता है। उसको लोभ वृत्ति, संग्रह वृत्ति नहीं होती है। किसी एक स्थान या घर परिवार में मुझे आसक्त नहीं होना चाहिए। चलता पानी निर्मल माना जाता है। बहता पानी, नदी का पानी, जबकि उस नदी के अंदर गांव के नाले, गंदे नाले, लोग कपड़े भी धोते हैं, गंदे कपड़े, उसमें मल त्याग भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो गंगा पवित्र ही मानी जाती है। ये गंगा नदी में तुम नहाते हो, लोटा भर के ले आते हो, पूजा भी करते हो, ये एकदम सीधे आकाश से टपक नहीं रही है। ये कितने हजार माइल से चली आ रही है, गांव की गर्मी को नदियों के माध्यम से लेकर और सागर तक जाती है। तो जिस तरह से यह गंगा बहती है तो पवित्र है, लेकिन सरोवर, पोखरी कितनी गहरी होती है, उसके अंदर के पानी को कोई पवित्र, पूजा योग्य, भोजन योग्य नहीं मानता है। तो बहता पानी निर्मल है, रुका पानी मलिन है। ऐसा ही साधु, बाबा, गुरु भी चलता रहे किसी गांव में, किसी घर में, किसी परिवार में, किसी व्यक्ति में आसक्त ना रहे कि बस दूध पीऊंगा तो काली गाय का ही दूध पीऊंगा, उसका स्तन भी काला होना चाहिए। ऐसे ऐसे भी आग्रह करते हैं। अपना यह पाके, मैं तो अपने हाथ से ही आग पैदा करूंगा, अपने हाथ से ही भोजन बनाऊंगा और करूंगा। तो ये आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो वायु सब जगह समान अपना धर्म फैलाती हुई चलती है। तो शरीर के भीतर प्राण वायु को भी कुछ मिल जाता है।
जो मिल जाए, तो मुट्ठी चना मिल जाए, कि बाजरे की रोटी मिल जाए, कि मक्का का दलिया मिल जाए, कि 56 रुपये भोग मिल जाए, बस भूख निवृत्ति का साधन जाने, उसी में वह संतुष्ट हो जाता है। इसी तरह मनुष्य को भी बिना मांगे जो सात्विक आहार मिल जाए उसको भी आवश्यकता अनुसार ग्रहण करे। ये नहीं कि अब गुलाब जामुन है तो खाती चलो, रसगुल्ला है तो खाती चलो, फिर भरते भी जाओगे, फिर निकलता भी जाओगे, इधर से भी निकलेगा, नीचे से भी निकलेगा, क्योंकि जितनी जरूरत थी प्रकृति ने ले लिया। तो इसलिए विवेक के द्वारा ग्रहण करना चाहिए, आवश्यकता को देखकर। इसी यथा प्राप्त में संतोष रहने के गुण को मैंने वायु से ग्रहण किया है। तो अभी तक हम 4 गुरुओं तक पहुंचे हैं। पहला गुरु पृथ्वी, दूसरा गुरु जल, तीसरा गुरु अग्नि और चौथा गुरु वायु। पृथ्वी से क्षमा गुण सीखा है, तो जल से हमने अपने अंदर क्या सीखा है? स्वच्छता और निर्मलता, माधुर्यता, ये अपने जीवन में वाणी में आना है। और तेज से हमने क्या सीखा है? वायु के द्वारा इस सबको समान रूप से देना है, राग द्वेष नहीं करना है। 5वां गुरु आकाश को स्वीकार किया है। आकाश से क्या गुण मिलता है? कितने पक्षियों को, पशुओं को, वृक्षों को, नगरों को अपने में समा के रख, सबको जगह देती है आकाश, अवकाश। सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, जहाज, वायु, बादल, गैस, धुआं, वर्षादि होते हैं, पर आकाश का किसी से कोई अहंता ममता कि मैं तुझको रख रहा हूँ, मैं तुझे नहीं रखूंगा, मैं निकाल दूंगा, कुछ नहीं। तुम उसके संग में, आकाश के संग में कैसा ही भी व्यवहार करो, तुम थूको आकाश के ऊपर, पर भी वो तुम्हारे को कोई सजा नहीं देता है। किसी से कोई अहंता ममता का राग द्वेष भाव नहीं रखता है। वह सदा असंग ही रहता है, वह व्यापक भी है और असंग भी है। उसी प्रकार आत्मा भी अपना असंग भी है और व्यापक भी है। सब में रहकर भी वह किसी में आसक्त नहीं होता है। आत्मा सबको छोड़कर और अन्य शरीर में एक परिवार के सब, बाप को, माँ को, भाई को, बहन को, पति को, पत्नी को, जब उसका समय आता है छोड़कर चला, किसी के लिए वो रुकता अटकता नहीं है। शरीर के साथ एवं इसके द्वारा होने वाले शुभाशुभ कर्म एवं उसके फलों से, सुख दुख पुण्य पाप से भी कोई संबंध नहीं है। वह संसार में रहकर सबको स्थान देकर भी लिप्त नहीं होता है। इस असंगता के गुण को मैंने आकाश से लिया है। आकाश से कौन सा गुण मिला? असंगता, किसी में भी लिप्त नहीं होता है। अब 6वां गुरु मैंने चंद्रमा को बनाया है। चंद्रमा सदा एक जैसा रहता है, न घटता है न बढ़ता है, किंतु पृथ्वी की गतिशीलता के कारण उसकी छाया पड़ने से चंद्रमा घटता बढ़ता दिखता है। उसी प्रकार आत्मा पूर्ण है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय अवस्था में भी वह एक जैसी रहती है। इसलिए कहा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो मैंने आत्मा की पूर्णता का ज्ञान चंद्रमा से लिया है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन मेरा 7वां गुरु सूर्य